Hello guys, my name is Dheeraj Kumar Gupta and you all are welcome in my channel, that is Networking Knowledge. So in today's video lecture we discuss Dynamic Host Configuration Protocol, that is the DHCP. So dynamic means it allocate the IP address automatically. So the dynamic concern comes under the allocation of IP address automatically, and the host is nothing but the client. So the client, and the configuration protocol means the host can be configured with the help of that IP addresses. So let's start dynamic host configuration protocol, that is DHCP. So first of all, what do you mean by the dynamic host configuration protocol, that is DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol, that is DHCP, is a client-server protocol that automatically provides an internet protocol, that is IP, host with its IP address and other related configuration information such as the subnet mask and default gateway. So in this dynamic host configuration protocols, generally we deal with the IP addresses, and that IP address is automatically provided to the host which require the IP addresses. So generally इसमें ये देखा जाता है कि जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स होता है, इसमें हम लोग जो IP एड्रेसेस होता है वो क्लाइंट के लिए डायनेमिकली मीन्स ऑटोमेटिकली उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्लाइंट उस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके. सो जब भी किसी भी होस्ट को एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे ये जो हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP जो होता है, ये एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली उसे प्रोवाइड करता है, और जिस आईपी एड्रेस को हम डायनेमिक आईपी एड्रेस भी कहते हैं. RFCs 2131 and 2132 define DHCP as an Internet Engineering Task Force, that is the IETF standard based on Bootstrap protocol, that is BootP, a protocol with which DHCP share many implementation details. So ये जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है, दैट इज द RFC, जो DHCP के लिए बनाया हुआ है, जो है 2131 एंड 2132. ये इसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया है. इसे जो बनाया जाता है दैट इज द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ये नंबर जो असाइन किया गया है. अब ये जो रिप्लेसमेंट है हमारी, दैट इज द DHCP, ये रिप्लेसमेंट है हमारे BootP इस प्रोटोकॉल्स की. सो BootP में भी हमें IP एड्रेस हमें मिलता था, हम उसे MAC एड्रेस प्रोवाइड करते थे और उसके थ्रू हमें वो IP एड्रेस प्रोवाइड करता था. सो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द BootP. सो BootP के जगह पे अब हम लोग DHCP ये प्रोटोकॉल को यूज करते हैं. DHCP अलाउ host to obtain require TCP and IP configuration information for a DHCP server. So जितने भी DHCP host होते हैं उनको जो भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरत होता है, उन होस्ट को जब नेटवर्क में TCP IP कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उस समय हमारा जो DHCP सर्वर है वो ये सब इंफॉर्मेशन उन DHCP होस्ट को प्रोवाइड करता है. DHCP automatically assign IP address to DHCP client. So this is the main thing कि जो DHCP जो सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है DHCP क्लाइंट को, क्लाइंट, और उसे हम लोग होस्ट भी कह सकते हैं. DHCP is based on client server model. So generally ये जो DHCP जो प्रोटोकॉल होता है ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड होता है. So जैसे कि हमें पता है कि there are different types of the networks which are in logical in nature. So the first one is the peer-to-peer, second one is the client server model, and third one is the hybrid model.
So in this DHCP belongs with the client server model. So in this client server model, the server gives the services and जो client है वो उस services को access करता है. So that depend on the client server model. DHCP work at application layer. So generally ये जो DHCP ये जो प्रोटोकॉल होता है ये application layer पे काम करता है, और एप्लीकेशन लेयर पे कई सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी काम करते हैं. उसी तरह से ये जो DHCP भी होता है ये वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे. IP address assign is known as dynamic IP address. So we already discussed this point कि जनरली जो भी IP एड्रेस इस प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है, मतलब इस DHCP के थ्रू जो भी IP मिलता है उसे हम लोग डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं. अब इसे डायनेमिक IP एड्रेस इसलिए कहते हैं कि ये IP एड्रेस फिक्स नहीं रहता है. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ये IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, या पर्टिकुलर लीज टाइम के लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद अगर क्लाइंट उसे रिन्यू नहीं करता है तो वो IP एड्रेस किसी और को दे दिया जाता है. सो दैट इज नॉट द फिक्स, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनेमिक होता है, इसलिए इसे हम लोग डायनेमिक IP एड्रेस भी कहते हैं. DHCP IP address range is called scope. जो भी DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिलता है उसे हम लोग स्कोप कहते हैं, या एक पर्टिकुलर लैब होता है, उस पर्टिकुलर लैब के हिसाब से, उस स्कोप के हिसाब से, स्लॉट के हिसाब से वो IP एड्रेस आपको मिलता है. सो यहाँ पे जो IP एड्रेस असाइन किया जाता है DHCP में, जब भी हम लोग DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो जो IP एड्रेस असाइन किया जाता है वो IP एड्रेस कोई भी क्लास का IP एड्रेस होता है, और उसे हम लोग असाइन करते हैं या हम लोग उसे कॉन्फ़िगर करते हैं. मान लीजिए अगर क्लास C का IP एड्रेस है तो आपको क्लास C का IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा. क्लास B का अगर IP एड्रेस आपने उस स्लॉट में या स्कोप में जो आपने उसको अगर असाइन किया है तो क्लास B का IP एड्रेस देगा, और अगर क्लास A का IP एड्रेस आपने उस स्कोप में असाइन किया है तो आपको क्लास A का IP एड्रेस देगा. जनरली देखा यह जाता है कि जब भी DHCP सर्वर आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है तो वो IP एड्रेस प्राइवेट IP एड्रेस होता है, ना कि वो पब्लिक IP एड्रेस होता है. सो वो प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हो. BOOTP is the another method to allocate IP, but MAC address must be entered manually in a BOOTP table. So generally इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने BOOTP को डिस्कस किया है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको BOOTP प्रोटोकॉल ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ये BOOTP भी एक टाइप का ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप BOOTP के थ्रू IP एड्रेस लेते हो तो आपको MAC एड्रेस वहाँ पे एंटर करना पड़ता है, वो भी मैनुअली, और उसके थ्रू वो आपको एक IP एड्रेस देता है. तो एक BOOTP एक टेबल क्रिएट करता है, उस टेबल में वो MAC एड्रेस और उसके सामने में जिसका MAC एड्रेस है उसका IP एड्रेस क्या है वो वहाँ पे एंटर करके रखता है. तो इस तरीके से ये जो हमारा जो DHCP है, ये जो रिप्लेसमेंट है इस BOOTP की, इसमें हमें मैनुअली कुछ काम नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ मेंटेन करके रखता है. DHCP इज अ डायनेमिक BOOTP. सो जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो DHCP है ये रिप्लेसमेंट है BOOTP की. सो ये DHCP क्या करता है, डायनेमिकली हर चीज़ को कॉन्फ़िगर करके रखता है. वो DHCP uses UDP port 67 and 68 at transport layer. So generally ये देखा जाता है कि जो ये DHCP जो प्रोटोकॉल होता है ये UDP प्रोटोकॉल के जो पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज़ करता है, और उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन जो उसके थ्रू ये IP प्रोवाइड करता है. सो जनरली ये देखा जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं वहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP. UDP ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है और ये फास्टर होता है दैन TCP से. सो जो DHCP है ये UDP के पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज़ करता है इन ट्रांसपोर्ट लेयर में. DHCP सर्वर
can provide IP address, subnet mask, domain name, default gateway, DNS server address, विंस सर्वर एड्रेस। सो जो DHCP सर्वर होता है ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, जिसके थ्रू उसमें वो उसको IP एड्रेस देता है, सबनेट मास्क देता है, उसके बाद डोमेन नेम उसको प्रोवाइड करता है कि किस सर्वर से वो बिलोंग कर रहा है, कि वो सर्वर किस कंपनी का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, कि वहाँ का डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करता है ताकि आप अगर कम्युनिकेट करना चाहो बाहर में, अगर नेटवर्क और इंटर नेटवर्क के साथ में आप कम्युनिकेट करना चाहो तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करता है। उसी के साथ में ये DNS सर्वर एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। मान लो अगर आप किसी भी साइट को एक्सेस करना चाहते हो तो उस साइट का जब आप नाम लिखते हो तो वो नाम उस DNS सर्वर के पास जाता है और DNS सर्वर उसको IP एलोकेट करके देता है ताकि वो जो सर्वर का जो एड्रेस है वो किस सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करना चाहेगा, सो वो एड्रेस आपको DNS सर्वर एड्रेस भी ये प्रोवाइड करता है ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सको। और साथ में ये विंडोज़ नेमिंग सर्वर की एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करता है। सो इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये DHCP सर्वर प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। नाउ वाई यूज DHCP, हम लोग ये DHCP क्यों यूज करते हैं? सो द रीजन इज एवरी डिवाइस ऑन अ TCP एंड IP बेस्ड नेटवर्क मस्ट हैव अ यूनिकास्ट IP एड्रेस टू एक्सेस द नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेस। सो जनरली हर एक डिवाइस जो होता है, जो भी TCP IP बेस्ड नेटवर्क के साथ में होता है, उसे एक यूनिकास्ट IP एड्रेस की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो नेटवर्क और रिसोर्स को एक्सेस कर सके। विदाउट DHCP IP एड्रेसेस फॉर न्यू कंप्यूटर्स and computers that are moved from one subnet to another must be configured manually। सो जनरली होता ऐसा है कि जो नए कंप्यूटर्स होते हैं या जो कंप्यूटर्स एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर्स को IP एड्रेस की ज़रूरत होती है और अगर DHCP ना हो तो वो IP एड्रेस हमें मैनुअली उन्हें देना पड़ता है, तभी हम लोग उस कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करने लायक बना सकते हैं। सो जब अगर DHCP ना हो तो वो काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। IP addresses for computers that are removed from the network must be manually reclaimed। सो जो IP एड्रेस होते हैं कंप्यूटर्स के, अगर वो उनसे वो IP एड्रेस रिमूव कर दिए जाए या नेटवर्क से उसे रिमूव हो जाए वो IP एड्रेसेस, तो उन्हें मैनुअली रिक्लेम करना पड़ता है, तभी वो जो डिवाइसेस है, जो भी क्लाइंट या जो होस्ट है, वो नेटवर्क में बाद में अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें मैनुअली रिक्लेम करना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी हेडेक व्हेन यू आर मैनुअली configure the addresses, IP addresses. With DHCP, this entire process is automated and managed centrally। सो जैसे कि हमने जाना कि जो DHCP होता है, ये जो सारी प्रोसेस है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, कि अगर वो कोई सिस्टम जो नए कंप्यूटर्स है या किसी ने कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव हो गए हैं या किसी का होस्ट से IP एड्रेस रिमूव हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें जो कॉन्फ़िगर करने का जो काम है ये DHCP सर्वर करता है और ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर और मैनेज करता है उस सभी सिस्टम्स के IP एड्रेसेस को। द DHCP सर्वर मेंटेन अ पूल ऑफ IP एड्रेसेस एंड लीजेस एंड एड्रेसेस टू एनी DHCP इनेबल क्लाइंट। सो जनरली ये जो DHCP सर्वर होता है ये क्या मेंटेन करता है एक पूल जिसे हम लोग स्कोप कहते हैं, और उसके बेस पे जितने भी सिस्टम्स है वो सभी सिस्टम्स को लीज पे या सब टाइम के लिए IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और सभी क्लाइंट को वो मैनेज करता है। When it start up on the network,
because the IP addresses are dynamically, that is the leased, rather than statically, that is the permanently assigned address no longer in use are automatically returned to the pool for reallocations. So जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट किया कर होता है उस नेटवर्क के साथ में, तो उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, और वो आईपी एड्रेस ये डीएचसीपी उसे डायनेमिकली, दैट इज़ द लीस्ट फॉर्म में उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। और वो एड्रेस जो प्रोवाइड करता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, और वो ऑटोमेटिकली उसको जब वो सिस्टम वहाँ से वो नेटवर्क से रिमूव होता है या वो उस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में लोकेट होता है, तो वो आईपी एड्रेस उससे वापस ले लिया जाता है। और ये जो आईपी एड्रेस है एक पर्टिकुलर स्कोप या पूल के बेस पे उसे रीअलोकेट किया जाता है। हाउ डज डीएचसीपी वर्क? सो अब डीएचसीपी वर्क कैसे करता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। When a client need to start up TCP and IP operation, it broadcast a request for address information. So generally जब भी कोई नया क्लाइंट या होस्ट किसी नेटवर्क में आता है और वो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद वो कम्युनिकेट करना चाहता है TCP IP ऑपरेशंस पे, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है एड्रेस के लिए, एड्रेस इंफॉर्मेशन के लिए वो ब्रॉडकास्ट करता है। The DHCP server will not reallocate the address during the lease period and will attempt to return the same address every time the client requests and addresses. So generally जो भी DHCP सर्वर होता है वो जनरली रीअलोकेट नहीं करता है कोई भी सेम एड्रेसेस को, जब तक कि उसका लीज टाइम पीरियड है वो कंप्लीट ना हो जाए। जब वो लीज टाइम पीरियड कंप्लीट होने लगता है और थोड़ा टाइम बाकी होता है, तो वो उसे अगेन एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है जिसके थ्रू वो जो एड्रेस है उसे वो रीअलोकेट करा सकता है। द क्लाइंट कैन एक्सटेंड इट्स लीज और सेंड अ मैसेज टू द सर्वर before the lease expire it that it no longer need the address, so it can be released and assigned to another client on the network. So generally जैसे कि किसी भी क्लाइंट का टाइमिंग या जो लीज टाइम है वो एक्सटेंड करने के लिए वो मैसेज सेंड करता है सर्वर को, और मैसेज सेंड करने के बाद उस टाइम को वो एक्सटेंड कर सकता है। अगर उसे वो टाइम एक्सटेंड नहीं करना है तो वो उससे रिलीज मैसेज सेंड करता है, और वो आईपी एड्रेस किसी और होस्ट को जो हमारा डीएचसीपी सर्वर है वो अलोकेट कर देता है नेटवर्क में। नाउ डीएचसीपी मैसेज फॉर्मेट, या इसको हम लोग पैकेट फॉर्मेट कहते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। So this is the DHCP message format और packet format. So generally ये जो DHCP message format या packet format है ये सेम होता है आपके boot P packet format की तरह। boot P में भी ये सारे fields होते हैं। So मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने boot P का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें ये सारे फील्ड मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि ये फील्ड किस लिए यूज़ होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब जो इसमें डिफरेंस है हमारे डीएचसीपी मैसेज फॉर्मेट और बूट पी मैसेज फॉर्मेट में, वो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ अनयूज्ड। ये जो 16 जो बीट का जो यहाँ पे प्लेस होता है ये बूट पी में अनयूज्ड होता है, वाइल इन डीएचसीपी मैसेज फॉर्मेट में ये फ्लैग के लिए यूज किया जाता है। ये जो 16 बीट का यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ये फ्लैग के लिए यूज होता है इन डीएचसीपी। तो जैसे ही आपको एग्जाम में अगर कभी ये पूछा जाता है कि आपको बूट पी का पैकेट फॉर्मेट बनाना है या डीएचसीपी का पैकेट फॉर्मेट बनाना है, तो ये दोनों सेम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सेम फील्ड होते हैं हर दोनों। इसमें सिर्फ फर्क यहीं पे होता है
कि जो नंबर ऑफ सेकंड इसके बाद का जो यहाँ पे 16 बीट होता है ये बूट P में अनयूज्ड होता है और DSCP में ये फ्लैग के लिए यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो DSCP भी होता है तो ये 16 में से सिर्फ 1 बीट यहाँ पे फ्लैग के लिए यूज होता है और बाकी की ये 15 बीट में हम लोग 0 अलोकेट करके रखते हैं, 0 प्रोवाइड करके रखते हैं। अब ये जो फ्लैग का बीट होता है 1 बीट, ये 0 और 1 होता है और इसके बेस पे ये जो मैसेज है वो यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारा DSCP का जो मैसेज फॉर्मेट है वो है। अब जनरली हम लोग इसका जो फ्लैग फील्ड है उसे डिस्कस करते हैं, बाकी फील्ड्स हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो द फ्लैग फॉर्मेट, फ्लैग में दिस इज अ 16 बीट फील्ड इन विच ओनली द लेफ्ट मोस्ट बीट इज यूज्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बीट शुड बी सेट एज जीरोस। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके जो फ्लैग बीट होता है ये 16 बीट का होता है और यहाँ पे हम लोग ये फ्लैग बीट DSCP पैकेट फॉर्मेट और मैसेज फॉर्मेट में हम लोग यूज करते हैं, वही जो कि बूट P में इसे हम लोग अनयूज्ड करके यूज करते हैं। सो ये जो हम लोग अभी जो पैकेट फॉर्मेट देख रहे हैं दैट इज द DSCP का है और इसमें ये फ्लैग करके यूज होता है और इसमें जो 16 बीट होते हैं ये 16 बीट में से भी जो सिंगल एक बीट होता है जो लेफ्ट मोस्ट बीट है उसे हम लोग यूज करते हैं और बाकी में सभी में 0 पुट करते हैं हम लोग। अ लेफ्ट मोस्ट बीट स्पेसिफाइज अ ब्रॉडकास्ट रिप्लाई इंस्टेंट ऑफ यूनिकास्ट फ्रॉम द सर्वर। सो जनरली जो लेफ्ट मोस्ट बीट होती है उसे हम लोग उसमें हम लोग 0 या तो 1 पुट करते हैं और जिसके बेस पे वो इंडिकेट करता है कि वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है या यूनिकास्ट परफॉर्म करना चाहता है। इफ द रिप्लाई मैसेज टू बी यूनिकास्ट टू द क्लाइंट द डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ द IP पैकेट इज द एड्रेस असाइन टू द क्लाइंट। सो जनरली ये डिपेंड करता है उस सिंगल बीट पे जो लेफ्ट मोस्ट में है उसमें 0 है या 1 है और उसके बेस पे ये जो मैसेज होता है ये यूनिकास्ट टू द क्लाइंट होता है या जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है पैकेट को उसे असाइन किया जाता है क्लाइंट के थ्रू। सो दिस इज द फ्लैग फॉर्मेट। इन दिस फ्लैग देयर इज अ 16 बीट एंड इन 16 बीट में से ये जो सिंगल बीट होता है इसे हम लोग यूज करते हैं और बाकी की जो 15 बीट्स है इसमें हम लोग 0 पुट करके रखते हैं। अब ये जो सिंगल बीट है ये तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 है इसका मतलब वो यूनिकास्ट है और अगर 1 है इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट है। तो इस तरीके से जो फ्लैग फील्ड है वो जो हमारा DSCP मैसेज फॉर्मेट या जो पैकेट फॉर्मेट है उसमें हम लोग यूज करते हैं। नाउ स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ DSCP। ये DSCP किस तरीके से काम करता है, कैसे क्लाइंट को, कैसे होस्ट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसके पीछे की पूरी प्रोसेस क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ DSCP में। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ DSCP and that diagram is the state transaction diagram। सो जनरली यहाँ पे होता क्या है कि जब भी DSCP किसी भी नेटवर्क में आता है तो सबसे पहले वो इनिशियलाइज करता है, दैट इज द इनिशियलाइजिंग, सिलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग, बाउंड करता है और उसके बाद रिन्यूइंग एंड रिबाउंडिंग, इतने सारे ये फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। सो जनरली ये कुछ मैसेज भी प्रोवाइड करता है और वो जो मैसेज होते हैं वो DSCP मैसेज होते हैं और उसमें जो मैसेज है दैट इज द DSCP डिस्कवर, DSCP ऑफर, DSCP रिक्वेस्ट, DSCP एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे DSCP एक्नॉलेजमेंट एंड हियर द DSCP रिक्वेस्ट, यहाँ पे DSCP रिक्वेस्ट और यहाँ पे DSCP रिलीज, ये सारे फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है। सो ये जो कि स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम है और जो ये मैसेजेस है ये एक दूसरे के साथ में कैसे काम करते हैं तो वो सब इसके बेस पे होते हैं, वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जनरली क्या होता है
कि जब भी कोई DHCP सर्वर किसी नेटवर्क में रहता है तो कोई भी क्लाइंट है उसे जब IP एड्रेस की ज़रूरत होती है तो वो DHCP डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है। उसके बाद में जो भी DHCP सर्वर होते हैं वो उसे DHCP ऑफर सेंड करते हैं और जिसकी भी ऑफर ठीक लगती है उस क्लाइंट को उसका IP एड्रेस वो उसे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को तो वो उस चीज़ को बाउंड कर देता है, वो IP एड्रेस किसी टाइम के लिए, एक लीज टाइम के लिए उसे क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद जब उसका लीज टाइम 50% एक्सपायर हो जाता है तो अगेन जो DHCP रिक्वेस्ट है एक सर्वर वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है कि आप उस IP एड्रेस को रिन्यू कराना चाहते हो कि नहीं। अगर वो नहीं कराना चाहता है तो वो उसे चलने देता है और जब ये टाइमिंग 87.5% एक्सपायर होता है तो अगेन वो जो DHCP सर्वर है वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है। अगर वो उसे रिन्यू कराना चाहता है तो उसे रिबाइंड करता है, अदरवाइज वो जो बॉन्ड है उसे वो रिलीज कर देता है और वो IP एड्रेस किसी और क्लाइंट को देता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है दैट इज द DHCP की वो चलती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि ये जो जितने सारे मैसेजेस है वो मैसेज क्या क्या चीजें परफॉर्म करते हैं। सो DHCP मैसेज, so in this message there are 8 types of message. First one is the DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, DHCP decline, DHCP acknowledgement, DHCP n acknowledgement means no acknowledgement, DHCP release and DHCP inform। इतने सारे मैसेज जो DHCP है ये प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज द DHCP डिस्कवर। ये फर्स्ट मैसेज है दैट इज क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टू लोकेट अवेलेबल सर्वर। सो ये जो जितने भी क्लाइंट होते हैं जब भी उन्हें किसी IP एड्रेस की जरूरत होती है तो उस टाइम पे ये जो फर्स्ट मैसेज है ये क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो हियर यहाँ पे दिस इज द DHCP क्लाइंट एंड इट वांट द IP एड्रेस। सो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा DHCP जो डिस्कवर मैसेज है वो यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट करता है और इसके बेस पे ये सभी मैसेज यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस नेटवर्क में 2 DHCP सर्वर है तो ये सभी सर्वर्स ये मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द DHCP ऑफर, सर्वर टू क्लाइंट इन रिस्पॉन्स टू DHCP डिस्कवर विथ ऑफर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। सो जनरली जो भी सर्वर्स उस नेटवर्क में प्रेजेंट है, जो पहला जो मैसेज जो क्लाइंट या होस्ट ने जो DHCP डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था उसके रिप्लाई में जितने भी सर्वर होते हैं वो DHCP ऑफर वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। सो इन दिस डायग्राम दिस इज द DHCP client and here there is a 2 DHCP servers. So these 2 servers provide the offers to the client. So यहाँ पे जितने भी सर्वर है ये सभी सर्वर्स इस क्लाइंट को DHCP ऑफर प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन द ऑफर ये क्लाइंट डिसाइड करता है कि मुझे इस सर्वर से IP एड्रेस लेना है या इस सर्वर से IP एड्रेस लेना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द DHCP एक्नॉलेजमेंट, सर्वर टू क्लाइंट विथ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग कमिटेड नेटवर्क एड्रेस। सो जनरली यहाँ पे अब ये होता है कि जैसे ही किसी भी सर्वर का ऑफर उस क्लाइंट को पसंद आता है तो वो क्लाइंट वहाँ से एक IP एड्रेस के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। और नेक्स्ट वन इज द DHCP नो एक्नॉलेजमेंट, सर्वर टू क्लाइंट इंडिकेटिंग क्लाइंट नोटेशन ऑफ नेटवर्क एड्रेस इज इनकरेक्ट। अगर उसका जो एड्रेस है वो इनकरेक्ट है तो वो जो मैसेज है दैट इज द DHCP नो एक्नॉलेजमेंट, ये मैसेज वो सेंड करता है क्लाइंट, दैट इज क्लाइंट हैज मूव टू न्यू सबनेट और क्लाइंट लीज एज एक्सपायर्ड। सो अगर क्लाइंट किसी और नेटवर्क में मूव करता है या उसका जो लाइसेंस जो टाइम है लीज टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है तब वो DHCP नो एक्नॉलेजमेंट ये मैसेज सेंड करता है। सो यहाँ पे कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो DHCP क्लाइंट है इसने यहाँ पे
DHCP रिक्वेस्ट सेंड की है और उसके बेस पे ये जो DHCP सर्वर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजा है इस टाइम के लिए। ये जो क्लाइंट है इसने इस DHCP सर्वर से IP एड्रेस ले लिया है। सो यहाँ पे एट दिस टाइम द DHCP क्लाइंट कैन स्टार्ट टू यूज द IP एड्रेस। यहाँ पे इस क्लाइंट ने IP एड्रेस यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द DHCP डिक्लाइन। The client to server indicating network address is already in use. So अगर वो एड्रेस ऑलरेडी यूज हो रहा है तो वो ये मैसेज भेजता है, दैट इज द DHCP declined. DHCP released. Client to server reliquizing network address and cancelling remaining lease. सो जनरली ये जब भी मैसेज ये सेंड होता है DHCP रिलीज, तब वो या तो क्लाइंट का जो लीज टाइम है वो एक्सपायर हो गया हो, या तो क्लाइंट को अब उस IP एड्रेस की ज़रूरत ना हो, तो उस टाइम पे ये जो DHCP रिलीज मैसेज होता है ये क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को। DHCP इन्फॉर्म क्लाइंट टू सर्वर आस्किंग ओनली फॉर लोकल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। Client already has externally configured network address. So generally ये जब भी मैसेज क्लाइंट प्रोवाइड करता है सर्वर को कि जब DHCP इन्फॉर्म कि जब उसे लोकल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स की IP एड्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी हैज़ एक्सटर्नली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क एड्रेस उसके पास में है, और जो लोकल कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे वो DHCP इन्फॉर्म ये मैसेज सेंड करता है क्लाइंट सर्वर को। नाउ हियर रिन्यूइंग अ लीज सेंड व्हेन 50% ऑफ लीज हैज एक्सपायर्ड इफ DHCP सर्वर सेंड DHCP नो एक्नॉलेजमेंट देन एड्रेस इज रिलीज। सो जनरली जब 50% का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो जो DHCP सर्वर है वो क्लाइंट को एक मैसेज भेजता है रिन्यूअल का, और उसमें अगर वो मैसेज को एक्सेप्ट करके वो रिन्यू करता है तो ठीक, अदरवाइज वो DHCP नो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है। एट दिस टाइम द DHCP क्लाइंट हैज़ रिलीज द IP एड्रेस, और अगर उसका टाइम एक्सपायर हो गया होगा तो DHCP जो क्लाइंट होता है वो IP एड्रेस को रिलीज कर देता है। सो हियर the client is sending a message that is the DHCP release to DHCP server. So ऐसे कंडीशन में जैसे इसका टाइम कंप्लीट हो गया तो ये जो IP एड्रेस है ये रिलीज कर देता है और ये सर्वर को मैसेज सेंड कर देता है। So this is the state transaction diagram and their functions and the message of DHCP, how the DHCP perform the addresses to the क्लाइंट। सो जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा कि किस तरीके से DHCP सर्वर है जो DHCP क्लाइंट या होस्ट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसके साथ में ये कौन से मैसेजेस यूज़ करता है, उसके बाद में क्या क्या फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है, ये सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इस कंटेंट के अंदर में, जिससे हम लोग बोलते हैं स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ DHCP। इसके अंदर में ये सभी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्ज़ाम में ये कंटेंट पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये एग्ज़ाम में ये पूछे जाए तो आप इस तरीके का डायग्राम निकाल के ये सभी जो मैसेजेस है और जो इसके फंक्शंस है उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ वी डिस्कस दी एडवांटेजेस ऑफ DHCP। सो DHCP के कुछ एडवांटेजेस है। DHCP मिनिमाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। सो जनरली ये जो DHCP होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव का बर्डन को मिनिमाइज करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स है और उसमें अगर आप मैनुअली IP एड्रेस देते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और ऐसा हम लोग जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को हम लोग मैनुअली IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकें। तो DHCP ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है ये मिनिमाइज करता है। बाय यूजिंग DHCP देयर इज नो चांस टू कॉन्फ्लिक्ट IP एड्रेसेस। सो जनरली होता ऐसा है कि जब भी हम लोग मैनुअली IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि जो IP एड्रेस है वो रिपीट हो जाए।
सो वो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग अगर डीएचसीपी का यूज़ करते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के आईपी एड्रेसेस के। बाय यूजिंग डीएचसीपी रिले एजेंट यू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू अनदर नेटवर्क। सो जनरली ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है डीएचसीपी में कि अगर आप किसी और नेटवर्क को भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो हम लोग एक रिले एजेंट यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग किसी और नेटवर्क में भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीएचसीपी। नाउ वी डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएचसीपी। When DHCP server is unavailable, client is unable to access enterprise network. So this is the disadvantages whenever the DHCP server is unavailable. अगर DHCP server unavailable है तो जो client होता है वो unavailable होता है, उसे एक्सेस करना enterprise network को, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक डीएचसीपी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। योर मशीन नेम डज नॉट चेंज व्हेन यू गेट अ न्यू आईपी एड्रेस। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि जो आपका मशीन नेम होता है वो चेंज नहीं होता है जब भी आपको कोई नया आईपी एड्रेस मिलता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएचसीपी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएचसीपी। सो जैसे कि हम लोगों ने आज के वीडियोस लेक्चर में डिस्कस किया कि ये डीएचसीपी क्या होता है, जिसे हम लोग डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं और कैसे हम लोग किसी भी क्लाइंट को, डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू दैट डीएचसीपी सर्वर। ये सभी पैरामीटर्स हम लोगों ने अब तक इसमें डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, बाय बाय।